Today, I teach you English subject and I am your English teacher, Sandhya Singh. Student, when we go to a party or any events or in marriage or in other occasions, we all are wear a new clothes, heavy clothes, jewelry, new shoes, costly jewelry, all of us wear. You do, this is you know, huh? Now student, we all are know about women's love about ornaments. Do you know what are the favorite ornaments of women like to wear? There are so many ornaments women like earring, like hand ring, and so many ornaments. But women favorite ornaments is necklace. Necklace. That means necklace. Necklace. All of you know about necklace. Student, today we learn Unit 1, that is 1.4, the necklace. Written by a famous French author, Guy de Maupassant. Student, this is a very interesting story and very good message too. Student, I will tell you the story in summary, but first I am sending you a PDF to you. I am share a PDF with you. Okay? The necklace. सभी को मिल गया बच्चों? सभी के स्क्रीन पे आ गया होगा? Yes, teacher. Student, there are main three characters in this story. This is a very interesting story, huh? Listen carefully. There are three characters in the story. One is Matilda. Second one is her husband, Mr. Liesel. And third one is Madam Forestier. Student, आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत ज्यादा हार्ड नाम है, इसे हम कैसे याद करेंगे? तो मैं आप लोगों को एक ट्रिक देती हूँ ये नाम याद रखने का। मैं भी इसी तरह ऐसे नाम जो होते हैं हार्ड, कठिन, क्योंकि ये फ्रेंच स्टोरी है और ये नाम उसी से रिलेटेड है, तो मैं भी आप लोगों को एक ट्रिक देती हूँ, ध्यान रखना। ऑथर का नाम मैंने बताया, गाय द मुपासा। गाय द मुपासा सबको पता है गाय किसे कहते हैं। एक इजी वर्ड बोलती हूँ, द तो सबको पता है, एंड मुपासा, मुपासा मीन्स आप ऐसे बोल सकते हो कि मोगेम्बो, एक मोगेम्बो की तरह एक डायलॉग यूज कर लो, हे मोगेम्बो, हे मुपासा, इस तरह तुम्हें वो याद हो जाएगा। अब हम स्टोरी के तीनों पात्र, कैरेक्टर का नाम याद रखना है हमें। Matilda, Met, ill, Matilda, it is very easy. Met, you all of know Met, ill, Matilda. Second one is Mr. Liesel, Liesel सबको पता है, अपने यहाँ Liesel हम बोलते हैं, वो भी एक इजी हो गया। थर्ड है मैडम फॉरेस्टियर। फॉरेस्टियर मीन्स फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को स्पेलिंग कर देंगे आप फॉरेस्टियर। तो तीनों नाम हमें याद रखना बहुत जरूरी है। जब तीनों नाम याद रहेगा तो ही हम स्टोरी का मजा ले पाएंगे, इंटरेस्ट आएगा। नाउ स्टूडेंट, आई टेल यू समरी ऑफ द स्टोरी। इन द फर्स्ट पैरा, द फर्स्ट and main character in the story
was Matilda. Introduced to us. She was a pretty woman, yeah, pretty girl, and she born in a middle class family. Her expectation with the life was very high, as she was from a poor family and married a very common man who was a clerk in the Ministry of Education. Student, I will tell you summary. I am not reading the lesson. I, I tell you only summary. Summary means sankshipt. Sankshipt, in short. Huh? She always dreamt of big house with rich dress and jewels. One day, her husband came to after office. He brought an envelope. Envelope means lifafa. Envelope, which was invitation. Invitation means nimantran for the couple for a great party. After reading the invitation, Matilda became sad and frustrated as she nothing to wear a good dress and jewel at the party. स्टूडेंट, अब मैं स्टोरी आप लोग को थोड़ा इंटरेस्ट लगे, थोड़ा अच्छा लगे, क्योंकि इंग्लिश टू इंग्लिश बोलूंगी तो थोड़ा शायद आप कहीं बोर हो सकते हो, तो थोड़ा सा मैं आप लोग को इसको हिंदी में भी इसका संक्षिप्त में परिचय देना चाहूंगी। जैसा कि मैंने बताया, ये स्टोरी फ्रेंच ऑथर ने लिखा है, गाय द मोपासानी, और यहाँ पे 3 कैरेक्टर है, एक 2 लेडीज है, एक जेंट्स है, एक मियाँ बीबी है और एक उनकी फ्रेंड है। चलिए आगे हम उनसे परिचय लेते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ में मैटिल्डा के बारे में बताया गया है। मैटिल्डा जो कि एक बहुत ही सुंदर लड़की है, पर उसे उसका भाग्य कहिए या दुर्भाग्य कहिए, वो बहुत सुंदर है और उसके सपने, उसके ख्वाब बहुत ऊंचे हैं। वह हमेशा सोचती है कि मैं इतनी सुंदर हूँ तो क्यों ना मैं बहुत अच्छे कपड़े, बहुत अच्छी ज्वेलरी, बहुत अच्छे ऑर्नामेंट्स और अच्छे घर में रहूं, बड़े घर में रहूं। इस तरह का उसका सपना बचपन से था। पर एक गरीब परिवार में जन्म लेने के कारण उसकी शादी, जैसे वो बड़ी हुई, शादी लायक हुई, उसकी शादी उसी के जैसे मिडिल क्लास फैमिली, पुअर फैमिली में हो गई, जो कि एक बहुत कॉमन मैन था, पर उसका स्वभाव बहुत अच्छा था और वह मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में क्लर्क था। तो क्लर्क की पेमेंट बहुत ज्यादा नहीं हुआ करती थी उस समय, इसलिए मैटिल्डा उनके घर जाती है, पर मैटिल्डा अंदर से हमेशा दुखी रहती है। हमेशा उसके ख्वाब वहां पे भी वही चलते रहते हैं कि काश मेरा बड़ा घर होता, मेरे पास बहुत सारे गहने होते, बहुत बड़े बड़े मेरे कमरे होते, मेरा महलों जैसा घर होता। वो भवन में गरम गरम डाल देना, उसमें से वो खाना। यही सब चीजें वो हमेशा सोचती रहती थी। एक दिन शाम को उनके पति देव बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में ऑफिस से घर आते हैं। उनके हाथ में एक लिफाफा रहता है और वो जो लिफाफा आते ही मारे खुशी से वो अपने पत्नी के हाथ में थमा देते हैं। पत्नी मतलब यहाँ पे मैटिल्डा जो है वो देखती है एनवलप, उसमें एक इनविटेशन होता है, वह उसे खोलती है, उसे पढ़ती है और जैसे ही वो पढ़ती है वह उदास हो जाती है। उसका उदासी होने का कारण उसके पति समझ नहीं पाते हैं। वह पूछते हैं कि क्या बात है, तुम इतनी उदास क्यों हो, क्या बात है? मैंने तो सोचा था कि तुम्हें जब यह निमंत्रण मिलेगा तो तुम ये पाकर बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाओगी, इस वजह से मैंने तुम्हें यह निमंत्रण तुम्हारे हाथ में दिया।
मैटिल्डा उनसे कहती है कि क्या खुश हूँ, खुश होने का क्या, मेरे पास बहुत कारण है, क्योंकि मेरे पास उस पार्टी में बहुत बड़े बड़े धनवान लोग आएंगे जिनके पास अच्छे कपड़े, अच्छे गहने, अच्छे जूते, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें होगी। मेरे पास तो ये सब चीजें नहीं हैं, तो मैं पार्टी में नहीं जाऊंगी, मैं पार्टी में मुझे नहीं जाना है। उसके पति उसकी जब बातें सुनते हैं, उन्होंने तो कुछ और सोचा था और कुछ और हुआ। उनका ऐसा सोचना था कि मेरी पत्नी बहुत खुश होगी पार्टी में जाने के लिए, क्योंकि वो ऐसे ही ख्वाब देखती है। तो वो थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं और वो उससे बोलते हैं कि ठीक है, हम ये प्रॉब्लम देखते हैं। स्टूडेंट, एक बार इन इंग्लिश में ये पैराग्राफ वापस आपको बोलती हूँ, because I ask a question. Huh? Listen carefully. Matilda, she was a pretty woman, pretty girl, and she was born in a middle class family. Her expectation means asai, with the life was very high. As she was from a poor family and married a very common man who was clerk in the Ministry of Education, clerk. She always dreamt of big house with rich dressed and jewels. One fine day, her husband came to after office. He brought an envelope, which was invitation for the couple great party. After reading the invitation, Matilda became sad and frustrated. Why she frustrated? Because she had nothing to wear a good dress and jewel at the party. Student, in this page, there are some new words. I tell you the meanings of new words. First one is envelope. Envelope, you all of know envelope. Envelope means lifafa. Invitation. Invitation means निमंत्रण. हमें कहीं का निमंत्रण मिलता है ना, शादी, पूजा या किसी के बर्थडे का, उस तरह इनविटेशन कार्ड. एरर. ERROR. एरर. एरर means mistake. Fate. 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 Fate means destiny. Destiny means takdir, bhagya. Aristocrat. Aristocrat means nobleman. Nobleman means उच्च कुलीन व्यक्ति. Shabby. 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 Shabby means nearly worn out, अर्थात बहुत पुराना, फटा हुआ, खराब. Tormented. TORMENT. Tormented. Afflicted with great pain, मतलब बहुत सताया हुआ. और लास्ट वर्ड है ट्रिम्प, मीन्स विक्ट्री, ग्रेट सक्सेस और सफलता, या जिसे हम कह सकते हैं विजय. नाउ स्टूडेंट, आई विल शेयर you the next page. ओके स्टूडेंट, आपके स्क्रीन पे आ गया सेकंड पेज. स्टूडेंट,
Please tell me. Okay, thank you. आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हो ना? आप लोग को अच्छा लग रहा है? पेज नंबर 25. I tell you a summary, huh? After telling to his problem to his husband, he decided to buy a new dress for her, which would cost near about 400 francs. हम इंडिया में, हमारे यहाँ जैसे हम रुपया बोलते हैं, उस तरह फ्रांस में पैसे को फ्रेंच कहा जाता है. फ्रेंच का है या फ्रैंक का है, एक ही वर्ड है. Which he was means her husband, saving for himself to buy a gun for hunting. Although the problem of dress was solved, but still Matilda was not satisfied. Why is she not satisfied? Because she had no ornaments to wear. She decided to get help from her school friend. Her name was Madame Forestier. मैंने आपको पहले बताया, फॉरेस्ट का स्त्रीलिंग कर दो, फॉरेस्टियर, आपको नाम याद रहेगा. Matilda went to her house and told her about her problem. Her friend, Madame Forrester, offered her a beautiful diamond necklace. हम नेकलेस की बात कर रहे थे, अब यहाँ पे नेकलेस का नाम आ चुका है. Matilda was very happy and after getting the necklace. Now I explain you in Hindi. जब मैटिल्डा को निमंत्रण कार्ड मिला, निमंत्रण कार्ड पाके वह उदास हुई. अब उदास होने का कारण पति को बताया गया. क्या बताया गया? कि मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं है पहनने के लिए. पति भी सुनकर चिंतित हो गया. उसके पति ने उसे कहा कि कोई बात नहीं, मैंने आपसे पहले ही कहा था. उसका पति जो है वो बहुत अच्छे स्वभाव वाला व्यक्ति था. उसने उससे कहा कि कोई बात नहीं, आप बिल्कुल मत घबराइए, आप बिल्कुल मत चिंता कीजिए. मैंने पिछले कुछ दिनों से मैं कुछ पैसे जमा कर रहा हूँ. वो पैसा मैंने अपने लिए शिकार करने के लिए बंदूक, शिकारी बंदूक होता है, वो बंदूक मैं खरीदना चाहता था. और इन समर सबको पता है, इन समर में मैं अपने फ्रेंड के साथ जाने वाला हूँ शिकार करने के लिए. चलो कोई बात नहीं, ये चीज तो मैं बाद में भी ले सकता हूँ. इस समय तुम उदास हो ड्रेस के लिए, तो क्यों ना तुम एक ये पैसे का ड्रेस ले लो. मैटिल्डा बहुत खुश हुई. वह गई शॉप में और वहां से उसने उस पैसे से बढ़िया सी खूबसूरत सी ड्रेस लेकर वह आई पार्टी के लिए, और वह पार्टी के लिए तैयार होने लगी. पर ड्रेस लेने के बाद भी मैटिल्डा फिर उदास हो गई. अब उसके पति ने कहा कि अब क्या बात है, अब क्यों उदास हो, क्या बात है, बताओ मुझे. मैटिल्डा ने कहा, ड्रेस तो आ चुका है, पर क्या उस पार्टी में जाने के लिए मेरे पास बढ़िया कपड़े तो हो गए, पर क्या मेरे पास कुछ ऑर्नामेंट्स मिलेंगे? या मेरे पास तो ऑर्नामेंट्स है ही नहीं, उसका बंदोबस्त मैं कहाँ से करूं? और आपको पता है ऑर्नामेंट्स के बिना कोई भी कपड़ा अच्छा नहीं लगेगा. और मैंने जैसे कि पहले ही कहा था कि औरतों को ऑर्नामेंट्स बहुत ज्यादा पसंद है. आप लोग कहेंगे कि टीचर आप भी एक लेडीज हो, आपको पता है ऑर्नामेंट्स,
तो हाँ बच्चों, ये तो बात सही है, औरतों को ऑर्नामेंट्स से ज्यादा लगाव होता है, ज्यादा प्यारी वो चीज उन्हें होती है। तो इस तरह मैटिल्डा ने अपने पति को अब ये समस्या बताई। सुनकर उनके जो पति है वह फिर दुखी हो गए। अब उनके हाथ में कुछ भी नहीं था जिससे वो आगे का अरेंजमेंट कर सके। उन्होंने मैटिल्डा से अपनी परेशानी बताई। उन्होंने कहा क्यों ना, आजकल फैशन चल रहा है, तुम फ्लावर का अपना ऑर्नामेंट्स बना लो। फ्लावर पता है ना बच्चों, फूल, फ्लावर का ऑर्नामेंट्स बना लो, वो पहन के जाओगी तो भी अच्छा लगेगा, और आजकल इसका फैशन भी चल रहा है। मैटिल्डा ने कहा नहीं, मैं फ्लावर नहीं पहन सकती, ये ड्रेस के ऊपर अच्छा नहीं लगेगा और मुझे वो पसंद भी नहीं है। तब मैटिल्डा के हस्बैंड को अचानक याद आता है कि मैटिल्डा की एक फ्रेंड, जो कि नाम मैंने पहले बताया आप लोग को, मैडम फॉरेस्टियर, जो कि बहुत कॉन्वेंट स्कूल की पढ़ी हुई लड़की, बहुत धनवान, बहुत रिच, जिसे हम अमीर कहते हैं, बहुत अमीर थी, धनवान थी। इसके पहले मैटिल्डा जब भी उसके सामने रास्ते में उनकी मुलाकात होती थी या जब भी आमने सामने आते थे, मैटिल्डा उसको बात करना पसंद नहीं करती थी। मैटिल्डा उससे दूर भागती थी, इस वजह से कि मैटिल्डा सोचती थी कि मैं बहुत ही साधारण हूँ, मेरे पास साधारण कपड़े हैं, मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं, अच्छे गहने नहीं, और मेरी फ्रेंड जो है वो बहुत अच्छी है, रिच है, तो अपने आप को हीन भावना से वो ग्रसित पाती थी, इसलिए वो उसके पास जाती नहीं थी। पर आज मैटिल्डा उस फ्रेंड के घर गई, और उसके घर गई उसकी फ्रेंड को उसने, मैडम फॉरेस्टर को मैटिल्डा ने अपनी सारी समस्याएं बताई। उसकी फ्रेंड ने कहा कि कोई बात नहीं मैटिल्डा, तुम बिल्कुल घबराओ नहीं, मेरे पास बहुत सारे ऑर्नामेंट है, मैं तुम्हें यह ऑर्नामेंट देती हूँ, आप उसे शेयर कर सकते हो। बाद में मैटिल्डा वो उसका अपना बॉक्स देती है। मैटिल्डा उसमें ढूंढते ढूंढते मैटिल्डा की नजर एक हीरे से जड़ित हार नेकलेस, डायमंड नेकलेस के ऊपर पड़ती है। वो डायमंड नेकलेस बहुत खूबसूरत था, मैटिल्डा को बहुत पसंद आया। उसने हिचकिचाते हुए अपनी फ्रेंड से कहा कि क्या मैं यह ले सकती हूँ। उसकी फ्रेंड ने कहा क्यों नहीं, ले सकती हो, आप लेके जैसे तुम्हारा काम हो जाएगा मुझे लौटा देना। मैटिल्डा वह नेकलेस लेके बहुत प्रसन्न हुई और उसी प्रसन्न मुद्रा में अपने घर पहुंची। नाउ स्टूडेंट, I will again explain you in English. Please listen carefully. I ask a question. After telling to his problem to his husband, he decided to buy a new dress for her, which would cost 400 francs or franc, which he was means her husband, saving for himself to buy a gun for hunting. मैंने आपसे पहले ही कहा मैं बुक नहीं पढ़ रही हूँ, मैं समरी बता रही हूँ। I will dictate you in a summary. Although the problem of dress was solved, Matilda was still not satisfied, as she had no ornaments to wear. She decided to get help for her school friend, Madame Forestier. Matilda went to her house and told her about her problem. Her friend, Madame Forrester, offered her a beautiful diamond necklace. Matilda was very happy after getting the necklace. Here, some new words are: see, distress, D-I-S-T-R-E-S-S, distress. Distress means mental pain. In Hindi, मानसिक कष्ट. Trembled. Trembled means shock. Shock means यार डरते हुए थरथराना या कांपना.
ecstasy. Ecstasy means rapture. Rapture means अत्यंत हर्षोल्लास, means बहुत अधिक खुशी. स्टूडेंट, आपको इंटरेस्ट आ रहा है इस स्टोरी में? मैं आगे बढ़ूं, शेयर करूं? अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है और आपको समझ में आया तो प्लीज रेज योर हैंड. ओके, थैंक यू. नाउ आई शेयर थर्ड पेज. Student, you got third page? Okay, thank you. Thank you. Now see here. Matilda wearing a beautiful dress and the diamond necklace went to the party with her husband, where she was a total success. Matilda enjoyed her time at the party. They would left the party at around 4 o'clock in the morning. 4 a.m. Huh? After some struggle, they got a cab. Here cab means car, you know, cab, and they reached home. Matilda felt sad and sorry for herself as all of it was over. In home, when she was taking a final look for herself in the front of mirror. Mirror means सबको पता है, आईना. She realized that the necklace was missing around her neck. Oh, what happened? In shock, she told her husband about this and making him worried too. Now I explain in a Hindi. अब हमने देखा मैटिल्डा बहुत खुश होकर हार लेकर अपने घर पहुंची. घर आई तो उसके खुशी का ठिकाना नहीं था. उसने अपने पति को बताया और उसके बाद वो जो है पार्टी का दिन आ गया. पार्टी में ब्यूटीफुल ड्रेस और उसके साथ वह सुंदर डायमंड नेकलेस पहनकर अपने पति के साथ पार्टी में गई. पर ये क्या, जैसे ही वो पार्टी में पहुंचती है वो वहां देखती है कि ऑल ऑफ जितने लोग थे पार्टी के लोग सब उसकी तरफ देख रहे हैं, सब उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, सब उसे कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं. कॉम्प्लीमेंट सबको पता है बच्चों, प्रशंसा करना. सब उससे अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं. वह इतनी अधिक खुश हो गई, उसे लगा चलो मैं सक्सेस हो गई, मैंने जो चीज किया वह मैं सक्सेस हो गई. और वह मारे खुशी के फूली नहीं समा रही थी और वह भरपूर उस पार्टी का एंजॉय कर रही थी. फिर क्या होता है, पार्टी चलती रहती है. इतनी मैटिल्डा खुश रहती है कि जब से ही पार्टी खत्म होने का समय आता है, सुबह 4 बज जाता है, पता नहीं चलता है. सभी लोग पार्टी छोड़ के एक एक करके अपने घर की तरफ जाने लगते हैं. मैटिल्डा और उसके मिस्टर लाइजल ये दोनों भी पार्टी छोड़ के निकलते हैं. और जैसे वो पार्टी छोड़ के निकलते हैं, आगे बाहर जाते हैं तो उन्हें कोई कैब यहाँ पे मैंने बताया साधन, कार, घर जाने के लिए उन्हें साधन चाहिए था, कार ट्रेवलिंग के लिए, तो वह उन्हें नहीं मिल रहा था. उन्होंने क्या किया, वह थोड़ी दूर पैदल चल कर गए, काफी दूर. काफी स्ट्रगल के बाद, परेशानी के बाद उन्हें एक कैब मिला और वह कैब से वह अपने घर पहुंचे. पर यह क्या, मैटिल्डा जैसे ही घर पहुंची अगेन सी सो सैड. फिर वो बहुत सैड होके बैठ गई. अब उसके मन में क्या चल रहा था, उसके मन में ये चल रहा था कि ओह इतना अच्छा समय चल रहा था, इतनी अच्छी पार्टी चल रही थी और मैं
फिर से वही पुरानी लाइफ और पुराने कपड़े में पुराने घर में आ गई। अब ये पता नहीं कब मिलेगा, ऐसे सोचकर फिर वह दुखी हो गई। ऐसा सोचते सोचते उसे ऐसे लगा कि क्यों न अंतिम समय, लास्ट समय इस ड्रेस में और इस नेकलेस के साथ क्यों न मैं अपने आप को एक बार मिरर में फिर से देखूं और देखूं मैं कितनी सुंदर लग रही थी। लोग मेरी तारीफ कर रहे थे, प्रशंसा कर रहे थे। यह सोचकर वह मिरर के पास आती है। जैसे वह मिरर के पास आती है, वो अपना ड्रेस देखती है, बहुत खुश होती है। पर अचानक उसकी नजर उसके गले पे नेक पर जाती है। वह एकदम शॉक्ड हो जाती है, जोर से चिल्लाती है, अरे यह क्या, मेरा नेकलेस कहाँ गया। वह जोर से अपने कपड़ों को झटकती है कि कहीं फंसा हो तो गिर जाए, पर नहीं। वह घबराती हुई अपने पति के पास भागती है और अपने पति को यह सारी समस्याएं बताती है। और उसके पति जो है मिस्टर लाइजेल, वह भी सुन के बहुत दुखी हो जाते हैं। वह उसे समझाते हैं कि कोई बात नहीं, हम आगे ढूंढने की कोशिश करेंगे। सो स्टूडेंट, ये पार्ट 1 यहीं पे खत्म होता है। आगे की स्टोरी इन द सेकेंड पार्ट, वो सेकेंड पार्ट में है। अब मैं, जैसे कि मैंने आपको ये दोनों का वापस एक बार इंग्लिश में बताया, नाउ आई अगेन एक्सप्लेन यू इन इंग्लिश। आई आस्क यू क्वेश्चन, प्लीज लिसन केयरफुली। मैं बार बार बोल रही हूँ, मुझे आंसर चाहिए। Matilda, wearing a beautiful dress and the diamond necklace, and went to the party with her with her husband, where she was a total success. मैंने बताया था ना कि वो बहुत सब उसकी तारीफ करने लगे। तो यहाँ पे सक्सेस का अर्थ उसी से ताल्लुक रखता है, उसी से मतलब है। Matilda enjoyed her time at the party. They would left the party, left मतलब निकलना, छोड़ना, left the party at the 4 a.m. 4 o'clock in the morning. After some struggle, they got a cab and they reached home. Matilda felt sad and sorry for herself, as all of it was over. मैंने बताया ना, वो बहुत उदास हो जाती है कि सब अब खत्म हो गया, over. In home, when she was taken a final look, मैंने बताया घर में उसने आके सोचा कि चलो क्यों ना मैं फाइनल अपने आप को देख लूं इस कपड़े में और नेकलेस के साथ। Look for herself in the front of the mirror. She realized that the necklace was missing. खो गया, गायब। Around her neck, गले में नेकलेस नहीं है। In shock, she told her husband about this and making him worried too. यह बातें उसने अपने पति के साथ शेयर की और यह सुनकर उसके पति भी चिंतित हो गए। Now student, in this page number 26, there are some new words. Elegant, E-L-E-G-A-N-T, elegant. Elegant means attractive. Attractive का अर्थ सबको पता है, अट्रैक्शन, अट्रैक्टिव, आकर्षक। Gracious, G-R-A-C-I-O-U-S, gracious, showing the comfort and easy way of life. अपने आप को ग्रेसियस दिखाना, इजी वे ऑफ लाइफ करना। नेक्स्ट है पैनिक, P-A-N-I-C। अक्सर हम बातें करते समय वी यूज द वर्ड डोंट बी पैनिक। हम एक दूसरे को बोलते डोंट बी पैनिक। इन दिस पीरियड, कोरोना पीरियड, हम हमेशा यही वर्ड सुनते हैं, डोंट बी पैनिक, डोंट बी पैनिक। पैनिक मीन्स, हियर पैनिक मीन्स स्ट्रिकन और अफेक्टेड बाय फियर, मतलब डरना, भय से डरना। जैसे इस समय हम सब कोरोना से थोड़ा सा डरे हुए हैं। मिरर, M-I-R-R-O-R,
MIRROR, mirror. Mirror means सबको पता है, all of you know well. Mirror means शीशा, आईना. Disturbed, DISTURBED. This word we usually normal way we use. Don't disturb me. Don't be disturbed. हम अक्सर अपने फ्रेंड से, अपने घर वालों से या आपकी टीचर हमेशा आपको बोलती है पढ़ाते समय डोंट बी डिस्टर्ब. तो इस तरह ये वर्ड हम बार बार सुनते हैं, डोंट बी डिस्टर्ब. डिस्टर्ब मीन्स परेशान, परेशान, परेशान नहीं करो. तो स्टूडेंट, all of you understand the story? Please raise your hand. You like the story? Thank you. Thank you, student. Now I ask a question. Listen carefully and give me answer. How many characters in this story? How many characters in this story? Prabhu? Yes, teacher. Palak Gupta? Palak Gupta? Palak Gupta? Palak Gupta? Dheeraj sir? Palak? You don't know? Answer? Sneha? Sneha? Prabhu? You can't listen me? Can you listen me? Okay. Okay, मैं आंसर बता रही हूँ. हेलो, मैं आंसर बता रही हूँ. There are 3 characters in the story. Is Mr. Lazel and third one is Madam Forestier. Student, can you listen me? Student, please raise your hand. Can you listen me? Then what? Then why you're not giving the answer? Please give answer. Second question is, which ornament was lost by Matilda? Sneha, which ornaments was lost by Matilda? Sneha, tell me answer. Unmute करो, आंसर दो. Prabhu, can you listen me? What was the price of dress? What was the price of dress that Matilda brought for the party? Tell me answer. Prabhu, Sumit Yadav, Palak Gupta, Sneha Jaiswal, Preeti Yadav. आंसर क्यों नहीं दे रहे हो आप लोग? Please give me answer. It is very simple answer, very easy. You are not interested or what? Tell me answer, please.
टेल मी आंसर, गिव मी आंसर। रेज कर रहे हो आपका हैंड पर आंसर नहीं दे रहे हो। अपना माइक अनम्यूट करो, अपना माइक अनम्यूट करो। Question is, why was Matilda not happy after receiving the invitation for the party? Why was Matilda not happy after receiving the invitation for the party? Do you know the answer? Raise your hand. आप लोग की आवाज नहीं आ रही है, इसका अर्थ यह है कि आप लोगों को समझ में आ गया। आप लोग रेस कर रहे हैं हैंड, तो इसका अर्थ है कि आप लोगों को ये स्टोरी समझ में आ गई है। सो स्टूडेंट, गुड बाय, थैंक यू।